Good morning, students. Our next topic is divisibility of number. We will check whether a given number is divisible by this following number. In class 6, you have to study divisibility of 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11. Here you are seeing that you have to not study 7 because for 7 the divisibility checking method is a little bit lengthy. I will explain here, but that is not in your syllabus. First of all, I am discussing about divisibility of 10. Whether a given number is divisible by 10 or not. See, I am writing some number 58, 60, 700, 758, 9103, 91,030. I have written 6 number. By seeing the number, you can easily say that this number 58, 758 and 9103 are not divisible by 3. But remaining number, that is 60, 700, 91,030 are divisible by 10. So when you will compare this number, जब ये नंबर को कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे तुम कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0. Whenever a number having 0 at its unit place, then that number is divisible by 10. कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर गिवन है और उसकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0. यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर क्या होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 10. सो कंडीशन फॉर divisibility of 10 is at unit place 0 must be there. What should be there? At unit place 0 must be there. So we have discussed about 10. Now we will move for 5. Now again I will write some number and you divide it and check whether which number is divisible by 5. $68, 105, 20, 33, 45, 100. Again I have written 6 number. 68, it is not divisible by 5. 105, it is divisible by 5. 20, it is divisible by 5. 45, it is divisible. 100, it is divisible. 33, it is not divisible by 5. Again I am taking 46, it is also not divisible. 47, not divisible. 48, not divisible. 49, not divisible by 5. So when you will see which number are divisible by 5, जब तुम देखोगे कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 5 से, तो तुम्हें क्या एक पैटर्न मालूम चलेगा कि यूनिट प्लेस पे आइदर इट शुड हैव 5 और 0. अगर कोई भी नंबर कि यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 और 5, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5. सो ए नंबर must be divisible by 5, then at its unit place 0 or 5 must be there. If 0 or 5 is not present at the unit place, then that number is not exactly divisible by 5. So condition for 5, is at unit place
at unit place either 0 or 5 must present. क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 0 और 5. We have discussed 10, 5. Now we will move to 2. It is very easy to check divisibility of 2. Each and every number, even number, are divisible by 2. So all the even number are divisible by 2. So how you will identify whether a given number is even or not? You will see unit place. What number is present at unit place? If at unit place 0, 2, 4, 6, 8 are present. What? 0, 2, 4, 6, 8. Then that number will be divisible by 2. Means क्या? अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर वो इवन है, इवन का हम पहचान कैसे करते हैं? इवन का पहचान हम कैसे करते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट होगा वो तो या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा. क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8. अगर ये नहीं है, इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, in that case that number will not be divisible by 2. So you have understood the divisibility of 2. Now we will move to check whether a given number is divisible by 3 or not. So I am writing some number here. 3, 4, 3. Second, 6, 2, 8, 2. Third, 1, 2, 3, 7, 9, 2. So divisibility of 3 can be checked by adding all the numbers or by adding all the digits. Suppose here 3, 4, 3. 3, 4, 3 is made of 3, 4 and 3. When you will add 3, 4, 3 and its sum is divisible or multiple of 3, then it is divisible of 3. Then that given number is divisible by 3. देखो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है उसका हम चेक कैसे करेंगे? जो नंबर गिवन है उसको ऐड कर दो, जितने भी डिजिट्स है उसमें 5 डिजिट 6 डिजिट है सबको ऐड कर दो. ऐड करने के बाद जो उसका सम होगा, क्या होगा? सम. अगर वो सम 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. अब देखो पहला क्या है? 3, 4, 3. 3, 4, 3, 6, 10. 10 comes in the table of 3 or no? 10 is not divisible by 3. So 3, 4, 3 is not divisible by 3. And now 6, 2, 8, 2. Add 6 plus 2 plus 8 plus 2. Now 8, 16, 18. 18 is divisible by 3. So 6, 2, 8, 2 is divisible by 3. Similarly, now check for this. 1, 2, 3. 6 plus 7, 13 plus 9, 22 plus 2, 24. The sum is 24. So 1, 2, 3, 7, 9, 2 is divisible by 3. तो 3 का चेकिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जस्ट जितने भी डिजिट्स प्रेजेंट है उसको ऐड कर दो. ऐड करने के बाद उसका जो सम आएगा वो 3 के टेबल में या 3 से डिविजिबल है, देन दैट गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. नाउ we have discussed 3. Now for 6.
for a given number that must be divisible by 6 when it satisfy the condition. देखो 6 का हमने क्या पढ़ा है, फैक्टर्स क्या है, 6 का फैक्टर क्या है, 2 3, क्या क्या है, 1 2 3 6, 1 और 6 को भूल जाओ, 2 और 3 है, 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3। अगर कोई भी नंबर गिवन है, अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 2 और 3 से, then that number will be divisible by 6. I am taking example first 1 5 2, second I am taking 1 2 3 7 9 2, just I have taken in the case of 2. अब देखो 152 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 का 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया, 8। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 152 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। सो जब 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 152 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल का कंडीशन क्या है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 2 से भी और 3 से। अब देखो 1 2 3 1 2 3 7 9 2 2 से डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है और इसका सम कितना है, 2 3 6 9 20 24। So it is divisible by 3. 24 is divisible by 3. So 1 2 3 7 9 2 is divisible by 6। क्यों 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है। अब हमने 6 का देख लिया, अब हम देखेंगे किसका, 4 का। किसका, 4 का। अब देखो आई एम राइटिंग 152 1 8 6 9 4 2 132। I have written 3 number. For checking divisibility of 4, you have to take last 2 digit। क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट लो। जैसे 152 में क्या है 52, इसमें 1,86,942 में क्या है 42 और इसमें 132 में क्या है 32। अब क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो। क्या करके देखो, 4 से डिवाइड। अगर वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है, then that given number is divisible by 4। 52 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 multiply 13 that will gives you 52। so 152 is divisible by 4। अब देखो 42 4 से डिविजिबल नहीं है, so it will be not divisible by 4। means 1,86,942 is not divisible by 4। 32 4 से डिविजिबल है, so 132 is divisible by 4। अब सिमिलरली 8 का हम चेक करते हैं। किसका, 8 का। 4 में हम कितने नंबर लेते हैं, लास्ट के 2 नंबर। 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या लेना है, लास्ट के 3 डिजिट। क्या लेना है, लास्ट के 3 डिजिट। अब मान लो मैं यहां पे कर देता हूं 1152 और 1132। क्या 1152 1132। अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 152। अब 152 8 से डिविजिबल है कि नहीं, यस 152 इट इज डिविजिबल बाय 8। सो 1152 इट इज डिविजिबल बाय 8। अब देखो 942 8 से डिविजिबल है, चेक। 1 4 6 2 नो
it is not divisible by 942 is not divisible by 8. So 1,86,942 is not divisible by 8. Similarly 132, again 132 is not divisible by 8. So 1132 is not divisible by 8. So till now we have studied 8. Now we have remaining 9 and 11. The divisibility of 9 is same as divisibility of 3. Suppose you have given number 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 and B number 1, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4. नाउ जैसे हम 3 के डिविजिबिलिटी में क्या करते थे कि सारे डिजिट को हम ऐड कर देते थे और उसका चेक करते थे कि वो 3 के टेबल में है या 3 से डिविजिबल है, तो वो क्या होगा कि वो गिवन नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 3. सो फिर 9 के केस में भी हमें वही सेम चीज करना है. 9 के केस में भी हमारा सेम करना है. सिर्फ इसमें क्या करना है कि जो सम आएगा, जो डिजिट का सम आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से या 9 का मल्टीपल होना चाहिए. चलो पहला नंबर अब देखते हैं क्या है. पहला नंबर 3 plus 2 5 plus 4 9 plus 5 14 plus 6 20 plus 7 27 plus 8 35 35 plus 9 44 plus 2 46. 46 9 से डिविजिबल है नहीं है. 46 9 से डिविजिबल नहीं है. सो 3 2 4 5 6 7 8 is not divisible by 9. अब B वाला देखते हैं. B के लिए क्या है, 1 plus 6 7 plus 7 14 plus 8 22 22 plus 9 31 31 plus 2 33 plus 1 34 plus 4 38 plus 4 42 plus 3 45. B वाले का सम कितना आ रहा है 45. 45 9 के टेबल्स में आते हैं. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. किससे है, डिविजिबल बाय 9 से. नाउ वी इन क्लास 6 नाउ यू हैव टू स्टडी लास्ट दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11. अब 11 का डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी नंबर लिख लो. 1 6 7 8 9 4 3 2 6. B 1 6 7 8 Now what we have to see here 11 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है तुम्हें, ऑड नंबर प्लेस पे जो नंबर है उनका सम अलग करना है और जो इवन नंबर पे है उनका सम अलग करना है. क्या करना है, ऑड प्लेस वाले का अलग, इवन वाले का अलग. अब जैसे ऑड प्लेस वाले ले लो, ये हो गए ऑर्डर. जो ब्लू मार्कर से मैंने मार्क किया है और नंबर और प्लेस इसका सम क्या है, 1 plus 7 plus 9 plus 3 plus 6. 7 plus 1 8 8 plus 9 17 17 plus 3 20 20 plus 6 26. और जो बाकी नंबर है जो अंडरलाइन नहीं है उनका सम निकाल लो. उनका सम क्या आएगा, 6 plus 8 6 plus 8 plus 4
प्लस 2, 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। अब क्या करना है कि हमने ऑड प्लेस वाले नंबर का सम निकाल लिया, इवन नंबर वाले प्लेस का सम निकाल लिया। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। अब देखो 26 माइनस 20 इट इज 6। जो माइनस करने के बाद जो हमारा नंबर बचेगा, आइदर क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0, नहीं तो 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल्स। अगर 0 नहीं है, 11 का मल्टीपल्स भी नहीं है, then that number is not divisible by 11. So our A is not divisible by 11. अब दूसरा देखते हैं। क्या है, 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया, सम 8 प्लस 6 14 प्लस 18 कितना आ गया, 18। अब देखो 6 प्लस 8 प्लस 7, 6 प्लस 8 प्लस 7 कितना, 14 21। इसको 4 कर लो, इसको क्या कर लो, 4 कर लो, क्या हो जाएगा 12 18। अब क्या आ गया 18 18। अब क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, 18 माइनस 18 क्या आ गया, डिफरेंस 0। तो क्या हो जाएगा 1 6 7 8 6 4 4 इज डिविजिबल बाय 11। क्या है, ये डिविजिबल बाय 11 है। तो क्लास 6 में तुम्हें डिविजिबिलिटी ऑफ 10 5 2 3 6 4 8 9 11 पढ़ना है। तुम्हें क्या मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, 7 का। जो 7 का तुम्हें क्लास 6 में नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है। मैं 7 का बता देता हूं। 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो ऑस्कुलेटर मेथड से होता है। क्या होता है, ऑस्कुलेटर मेथड मींस उसमें क्या होता है कि हम जो पार्टिकुलर नंबर है ना, उसको हम जो यूनिट प्लेस के नंबर होंगे उसको हम पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देखो ऑस्कुलेटर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। कुछ केस में कुछ नंबर में हमें प्लस करना होता है, कुछ केस में माइनस करना होता है। 7 के केस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का जस्ट एक सिंपल मेथड है। कोई भी गिवन नंबर है उसका यूनिट प्लेस जैसे मैंने ले लिया 343, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर जो है उसे उसमें। अब देखो क्या आएगा, बाकी नंबर क्या हो गया 34। क्या हो गया 34 माइनस ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 34 माइनस 6 28। 28 क्या है, 7 से डिविजिबल है। चलो अनदर हम एग्जांपल लेते हैं। 3 4 6 7 5, 3 4 6 7 5 लिया। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, हमारा 5 है। क्या है 5। तो क्या आएगा 3 4 6 7 माइनस 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा 3 4 6 7 माइनस 10। क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 3 4 5 7। अब हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है 7। तो हम क्या करेंगे 3 4 5, जो रिमेनिंग नंबर बच गया माइनस 2 इंटू 7 क्या आ जाएगा 3 4 माइनस 14। कितना बच गया वो हमारा 3 3 1। अब क्या करेंगे 3 3 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया 33 माइनस 2 दैट इज 31। 31 7 से डिविजिबल है नहीं, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। Thank you. Solve the given exercise.